Every time this dream used to come, the next day I would really have a fever or something like that. It was that scary. मतलब आधा फेस वाज जैसे कि डिसम्बॉडी हुआ हुआ, आधा फेस वो बच्चे का फेस, मतलब कि इसके साथ साथ मुझे पैरेलली स्लीप पैरालिसिस हो रहा था इन द ड्रीम स्टेट. बट मेरी बॉडी पूरी कांप रही थी वो पूरा टाइम बिकॉज इतना डर गया था मैं इन द ड्रीम कि इट फ्रीक्ड मी आउट वेरी बैडली. पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट आवर स्कैरियस्ट ड्रीम्स. Welcome back everyone to another episode of the Ghost Encounters Unfiltered podcast. We took a break क्योंकि investigation videos आ रहे थे, लेकिन एक चीज़ हमने notice करा कि a lot of you are not getting notifications from YouTube जब हम videos post कर रहे हैं. बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि हमारी investigation videos आ चुके हैं and जब हम community पे डालते हैं आप लोग बोलते हो कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था. Including me. मुझे भी नहीं आता notification. Oh. Some issue from YouTube that's happening. So just know कि every weekend we post something or the other. पॉडकास्ट में तो इन्वेस्टिगेशन आते हैं, तो जब जैसे ही फ्राइडे आ जाता है आप ध्यान रखना कि कुछ तो पोस्ट होने वाला है. एंड आई थिंक अगर आपने सारे नोटिफिकेशन स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ डू दैट. आई थिंक दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशंस. एंड फिर भी बहुत लोगों को नहीं जा रहा है, बट कीप एन आई आउट, कीप योर बी अवेयर, क्योंकि हम लोग डालते हैं, हम लोग कम्युनिटी में डालेंगे. वी आर वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी सेक्शन एंड इंस्टाग्राम पे भी हम लोग डालते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं. सो फॉलो अस एंड फॉलो द कम्युनिटी टू बी अवेयर कि कब आ रहे हैं हमारे वीडियोस. एंड आज हम और एक अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ हैं, बट अगेन आज भी एक केस फाइल नहीं है. आज केसेस हमारे जो किस्से हैं वो हम बताने वाले हैं. एंड आपने टाइटल पे पढ़ लिया होगा, दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट आवर स्कैरियस्ट ड्रीम्स. And even though, you know, with time for me especially, the frequency of dreams has come down to बहुत low. लेकिन जब मैं छोटा था and to I think till 3-4 years back बहुत vivid dreams आते थे मुझे. बट पूजा को भी आते हैं. पूजा को तो मैंने देखा है ड्रीम्स से डर के उठते हुए. भैया का मुझे पता नहीं है, बट he has informed that he has one. So yeah, let's get into our scariest dreams. Let's start with you. Exactly, मैं वही बोल रही क्योंकि थी. मैं साबियों बहुत से अच्छे start से करेंगे. हाँ. We both want to hear. Yeah. अच्छा, my dream का I'll give you a quick background of the dream that I have. We have this property in Goa, which is ancestral. Okay. So my great grandfather had purchased this from a group of practicing tantrics and Okay. ghoris or whatever like that. So it was known as Bhaktans or Danda. Bhaktans or Danda, where Bhagats used to come and practice a lot of occult rituals. So there's a lot of things that are buried underneath in that Yeah. ground, including lampstands, golden lampstands, brass lampstands, Oh. and yeah, Elements. lot of elements, kalashes and everything, whatever they used to, bones, deep down, it's not very on the surface level, very deep down it has been buried. Then after that came down, and my great grandfather, as you know, was an exorcist, Yeah. a horseman and an exorcist. After that, it came to my grandfather, who actually got it out from everybody and all, whatever, doing the legal procedures and all during the Portuguese time. And then after that, came to my, the second line, my father's entire line of siblings. And then after that, came to us. So my dream, and I was not actually born and brought up in Goa. I'm born and brought up in Mumbai. But yet, in my dreams, when I was very small, I used to see a particular place in the house, and that house was huge because it was built for a joint family when my great grandfather purchased it. So it had like around 9 or 10 rooms and 3 kitchens, and those rooms were of massive size. It was like a mansion on a single floor. Then afterwards a well behind to conduct a lot of energy. So you can imagine when we as children would go from one room to the other, there was a kind of an airy feeling through the alleyways also, because very poorly lit rooms and alleys. So there was a certain amount of creep whenever we used to go for summer holidays and all. But one thing is, even before I could get the creeps about that place, was this dream that I had, that in my dreams I would explore a certain place in the house
in the backyard as in inside the house. I should enter in from somewhere playing hide and seek or whatever. During the dreams, it would vary, but somehow I would end up right in that हाउस. कभी कभी ऐसा होता था कि बारिश हो रही है तो मैं भाग के अंदर जाता हूँ कहीं से, तो अंदर घर के अंदर एंट्री मार के ड्रीम में. कभी कभी ऐसा होता है कि हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छपा छपी खेल रहे हैं और फिर मैं अंदर गया छुपने के लिए. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मारने को आ रहा है तो मैं अंदर छुप गया, या कुछ हो रहा है बाहर तो केओस हो रहा है तो मैं अंदर. तो रीजंस तो बहुत थे, बट देन आफ्टरवर्ड्स अल्टीमेटली आई वुड एंड अप इन दैट पर्टिकुलर वन रूम. और क्या होता है कि वो लाइटिंग जो है, वो फेडेड लाइटिंग मेरे अभी भी जहन में पूरा बसा हुआ है. वो फेडेड लाइटिंग में मैं हमेशा देखता हूँ कि वो एक तहखाना बना हुआ है. इट्स अ बेसमेंट जो अगर आप खोलोगे फ्रॉम दैट वुड का ये, तो वो खोलोगे तो उसके अंदर ना देयर इज अ डेप्थ ऑफ फ्लोर्स गोइंग डाउन. इट इज़ नॉट टू बिग, इट इज़ लाइक 6 feet by 6 feet का खड्डा है वो, ठीक है. एंड इनसाइड देयर इज अ होल दिस लाइक डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट फ्लोर्स जैसे इतने डेप्थ के होंगे दैट ओनली वन पर्सन कैन एक्चुअली क्राउच एंड सिट इनसाइड दैट. और उसके अंदर सामान रखा हुआ है, लाइक रेड साड़ी में पोटली बांध के कहाँ तो अंदर घुसाया हुआ है. द नेक्स्ट डे देयर विल बी वन संदूक रहेगा, अ ट्रंक, देन देयर विल बी अ सूटकेस और अ ब्रीफकेस समवेयर, देन सम वेसल समवेयर. तो हर इसके अंदर ना पूरा ऐसे साइड से बहुत कुछ ऐसे नजर आता है. अब मेरे में कीड़े तो बहुत थे, तो इन द ड्रीम ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू गेट इनसाइड दैट. तो मैं 1 या 2 लेवल से नीचे कभी नहीं उतर पाया, बिकॉज ड्रीम्स आर द ओनली प्लेस वेर आई रियली गेट रियली स्केर्ड. बहुत अलग स्केयर होता है. सो एंड दिस ड्रीम वॉज अ वेरी रिकरेंट ड्रीम. आई सॉ दिस टिल आई कुड टर्न आई थिंक 25 to 27. तब तक मुझे ये रिकरेंट ड्रीम बचपन से आते आ रहे हैं. एंड देन आई रियलाइज दिस ड्रीम इज समथिंग टू डू विद दैट हाउस, द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस एंड द वे इट इज बिल्ट एंड द थिंग्स दैट आर बेरिड अंडरनीथ दैट. अब दैट सेक्शन ऑफ द हाउस, आई मीन वो पूरा डिमोलिश हो चुका है, वहाँ पर बिल्डिंग तो बन चुकी है, बट दैट सेक्शन ऑफ द हाउस विच आई स्टिल ड्रीम अबाउट इज स्टिल देयर. उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो अभी तक है, महफूज है उधर पे. बट फॉर सम रीज़न वो ड्रीम्स स्टॉप हो गए हैं. एंड दैट फियर ऑफ द स्केरीनेस ऑफ द ड्रीम, बिकॉज एवरी टाइम दिस ड्रीम यूज टू कम, द नेक्स्ट डे आई वुड रियली हैव अ फीवर और समथिंग लाइक दैट. इट वॉज दैट स्केरी. ऑन द स्पॉट में ऐसा यू कुड कॉल इट स्लीप पैरालिसिस, बट ये स्लीप पैरालिसिस नहीं था. बिकॉज स्लीप पैरालिसिस में क्या है, आप उठ जाते हो ड्रीम से. मैं उठता नहीं, मुझे उठने के बाद दूसरे सुबह में मुझे याद आता कि यार ये ड्रीम फिर से आ गया. And this time I managed to go just 1 or 2 steps inside that, and I could never open the belongings that were kept inside that. And as I said, dreams are the only place where I get scared. So no really scary faces or whatever. कोई स्केरी फेस मुझे ऐसा डरा तो नहीं सकता. आई मीन यू नो मी राइट, तो वैसा डरता तो नहीं हूँ, बट देयर वाज अ फियर ऑफ दैट अननोन कि उसके अंदर क्या है. और नीचे पहुँचने के बाद मैं ऊपर से ऊपर क्या कैसे आ जाऊँगा, सॉर्ट ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया अगर बोले तो. अंदर आएगा तो ऊपर से कोई बंद किया तो मैं क्या उधर ही रह जाऊँगा अंदर अंधेरे में. सो इट वॉज वेरी डीप एंड वेरी आई मीन poorly lit place. So this is one dream that I could never decode. Maybe there are layers of understanding that I will have to reopen that this of my brain, and then afterwards get it out and try to see exactly कितना depth तक क्या है. There was 7 floors. जाने का सोचा नहीं कभी तूने? Practically no, because it was never in my control. मैं वो टाइम पे बहुत छोटा था, घर में सबसे छोटा था. मेरे बाद में एक कज़न आई जो मेरे से भी छोटी थी. दैट्स द एंड ऑफ दिस जनरेशन. सो वो था कि मेरे को कभी कंट्रोल आया ही नहीं कि मैं वहाँ पर किसको भी बोल दूँ कि यहाँ पर खोदो या यहाँ पर कुछ अंदर देखो या यहाँ पर कुछ है. ऐसे कभी कुछ ये नहीं हुआ. एंड सेकेंडली व्हेन जब कंट्रोल में जब आने लगा, व्हेन आई वाज लाइक ग्रेजुएटिंग, या इट वाज इन द माय फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दैट द प्रॉपर्टी गॉट ट्रांसफर्ड टू आई मीन द बिल्डर एंड फॉर रीडेवलपमेंट. सो वो टाइम तक बहुत लेट हो चुका था. आई वॉज लाइक बिजी अलॉन्ग विथ माई ओन लाइफ एंड कॉलेज एंड वर्क. आई वॉज वर्किंग अलॉन्ग विथ स्टडिंग. सो वो कभी हुआ ही नहीं. सो दैट वॉज द मोस्ट स्केरियस्ट ड्रीम आई हैव एवर ड्रीम्ड, जो रिकरेंट है. एंड टिल नाउ आई हैव दैट विविड पिक्चर. अभी तक मेरे मन में बसा हुआ है कि एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर है, कहाँ पर है और क्या है उसमें. इंटरेस्टिंग. आई विश तू जा सकता उधर एंड Yes. खोद के एक्चुअली निकालता. दैट Yes. वुड हैव बीन सो Amazing. नाइस. मेरा स्कैरियस्ट तो एक्चुअली सब जानते ही हैं, बट देयर आर 2 एक्चुअली. एक तो ऑफ कोर्स द एबट माउंट वाला, दैट इज समथिंग, आई मीन उसको अभी तक किसी ने पार नहीं किया है.
सो फॉर दोज हु आर न्यू, अगर मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, इट वाज दिस ड्रीम वेयर हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं एट द एबट माउंट, एंड उसके पहले मुझे ड्रीम आता है वेयर आई सी माई डिपार्टेड मॉम, एंड मम्मी दिख रही हैं, मम्मी का चेहरा दिख रहा है, बट द एनर्जी मेरी मॉम जैसी नहीं थी, कपड़े मेरी मॉम जैसे नहीं पहने हुए थे, हेयर स्टाइल मेरी मॉम जैसा नहीं था, बट द फेस वॉज ऑफ माई मॉम, एंड बहुत अजीब एनर्जी है, वो मुझसे बात कर रही हैं, मतलब इट वॉज अ वेरी डिटेल्ड ड्रीम जहाँ पर काफ़ी कुछ बात हुई हम लोगों की, बट एनीवेज आई स्नैप्ड आउट ऑफ द ड्रीम। मैं काफ़ी परेशान थी बिकॉज आई हैड रिसेंटली लॉस्ट हर। अगले दिन जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, I sensed the same energy in that investigation, and that is when I realized कि shit, this was not my mom, this was some entity which we realized कि वो shape shifting entity थी। आप जाके video देखो, so you will understand what I'm talking about. But the creepy part was कि हमने investigation किया, and investigation के बाद जब हम लोग वापस आए, she appeared again in my dream, and I think this section of the dream is there as a video on our channel, to link कर देना। So this was a very bizarre thing where she came back, जहाँ पे वो मुझे धमका रही है, मैं उठी, डर के उठी, मैं वॉशरूम वगैरह गई, पानी वगैरह पिया, वापस आई, she came back, so that entire thing was so traumatizing for me, that stretch of 2 to 3 days, कि literally मैंने तब इसको बोला था कि मुझसे 1 महीने तक पूछना भी मत इन्वेस्टिगेशन के लिए, because it really worked, you know, in a negative way on my energy and my mind and everything. तो एक तो यही था, दूसरा was the कुलधरा इन्वेस्टिगेशन के बाद वाला ड्रीम, you both remember ना? सो दिस वॉज अगेन कुलधरा के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, वो भी आप पहले वीडियो देख लो, सो यूल अंडरस्टैंड। सो हम लोग ने वी इन्वेस्टिगेटेड एंड वी वर कम्युनिकेटिंग विद अ बच्चे की एंटिटी। तो वहाँ कैसे था, हम लोगों ने कुलधरा में इन्वेस्टिगेशन किया, फिर हम लोग कुलधरा के बाउंड्री के बाहर एक पॉन्ड था, हम लोगों ने वहाँ पॉन्ड पे इन्वेस्टिगेशन किया, वेयर वी कम्युनिकेटेड विद अ फैमिली, मतलब हस्बैंड है, वाइफ है, उनका बच्चा है, समथिंग लाइक दैट। उस रात को क्या हुआ वॉज, मैं रात को, मतलब मैं सो रही हूँ एंड ड्रीम में मैं देख रही हूँ जैसे कि कोई मेरे कपड़े खींच रहा है, एंड व्हेन आई लुक कि कौन खींच रहा है, आई सी अ चाइल्ड, मतलब 5-6 साल का बच्चा, एंड वो कपड़े खींच रहा है, बट द फेस वॉज डिसएम्बॉडीड, मतलब आधा फेस वॉज जैसे कि डिसएम्बॉडी हुआ हुआ, आधा फेस वो बच्चे का फेस। मैं ड्रीम में आई वॉज पैनिकिंग, मैं उसको ऐसे हाथ छुड़ा रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, भाग रही हूँ, बट द चाइल्ड इज़ फॉलोइंग मी, एंड वो मुझे फॉलो कर रहा है, बट देयर वॉज अ पॉइंट जहाँ पर वो मेरा हाथ पकड़ता है, बट वो ड्रीम में ही, आई डोंट नो इफ आई शेयर दिस पार्ट, वो ड्रीम में ही मुझे जैसे कि ना आई वॉज फीलिंग गिल्टी कि मैं इसको हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं इससे पीछा छुड़ा रही हूँ, सो आई स्टॉप, बट वो जब हाथ मेरा पकड़ता है, मैं इतना पैनिक हो जाती हूँ ना कि दिस ड्रीम इट मतलब कि इसके साथ साथ मुझे पैरेलली स्लीप पैरालिसिस हो रहा था इन द ड्रीम स्टेट, लाइक इन द रियल स्टेट, कि मैं उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं वो जो सो रही हूँ मैं अपना हाथ नहीं खींच पा रही हूँ बिकॉज वो स्लीप पैरालिसिस हो रहा है मुझे। सो इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रीम एंड स्लीप पैरालिसिस। आई एम ट्राइंग टू शाउट, मैं चिल्ला नहीं पा रही हूँ, मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भाग नहीं पा रही हूँ, हिल नहीं पा रही हूँ। दैट वॉज सो ट्रॉमेटाइजिंग। बट एनीवेज वो उठने के बाद जब मैंने तुम लोग के साथ शेयर किया, वी फिगर्ड आउट कि आई थिंक वो एंटिटी वहीं की है, कुलधरा का बच्चा है जो शायद रह गया। वी ट्राई टू हेल्प द एंटिटीज। I think we discussed this there only, there in the morning, early at breakfast. Yeah, but when we went the next time, we made sure कि ये बच्चे को help मिले and the child also finds peace. But that was a very traumatizing and a scary dream for me, which was combined with sleep paralysis. बहुत, I mean, it was, and मैं वही है, like, you know, my dreams are so active and the other side communicates with me during dreams. So this is something that I can't stop.
Yeah. But these two were the more profound ones, I would say. But you get a lot of other dreams जो तुमको अभी याद नहीं है शायद. बहुत dreams But आते she gets a हैं. lot of vivid dreams. I'll tell you one more thing. So what I noticed पता है, I usually like बचपन से majority of the times मैं सोई हूँ with my head pointing the south. ठीक है, तो तब मुझे इतने ड्रीम्स आते हैं, मुझे लाइक द अदर साइड कम्युनिकेटिंग एंड बहुत विविड ड्रीम्स, और मुझे याद रहते हैं वो. देन लास्ट 3-4 years क्या हुआ, फॉर सम रीज़न हम लोगों का रूम एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस थोड़ा चेंज हुआ, तो मेरा स्लीपिंग डायरेक्शन बदल गया. बंद हो गया. हाँ, सो आई वॉज स्लीपिंग ईदर फेसिंग द ईस्ट और फेसिंग द वेस्ट, एंड माई ड्रीम स्टॉप्ड. मैं बहुत पीसफुली सोती थी, बहुत अच्छे से उठती थी, ड्रीम्स आते थे लेकिन मुझे याद नहीं रहते थे. बट वो कीड़ा ना कि नहीं मुझे चाहिए है, आई वांट टू कम्युनिकेट एंड आई वांट टू गेट मैसेजेस, देन आई वाज लाइक नहीं यार ये स्टॉप हो गया है, विच आई डिडंट रियलाइज इनिशियली. आई वाज जस्ट टेलिंग हिम मेरे ड्रीम्स नहीं आ रहे, मुझे ड्रीम्स क्यों नहीं आ रहे. आई वाज मिसिंग दैट पार्ट. देन आई रियलाइज दैट वेट, इज इट द डायरेक्शन. फिर अब 2 हफ्ते से वी आर स्लीपिंग अगेन फेसिंग द साउथ and they are back. They are back. Of course, facing the north कभी नहीं try किया मैंने, and I don't want to. हाँ, वो magnetic field तो by affect. default होगा. हाँ, But magnetic to the field two of affect you, क्योंकि you two of you also are like sensitive and psychics and everything. Any dream need not to be scary, but like regarding a location or an entity जो कि तुम लोग को आया है, and then when you have reached that location, it's like in a premonition way I'm asking. एंड उसी के शिट ये तो ड्रीम में ही देखा था मैंने, ये चीज़ को, ये जगह को, ये साइन को, ये लोगो को, समथिंग लाइक दैट. The first investigation, when you were not there, we had gone. इधर जो हुआ था तो. हाँ. But that was not a dream. It was prior to that. Prior It was a to dream. the investigation. It was a dream. जो 7 दिन पहले हम लोग ने जब डिस्कस किए थे कि जाना है and all, 5 or 6 days back, whatever we had a video call, and सर मैंने वो टाइम पे हमको समझाया था कि exactly investigation क्या करना है, कैसे करना है, ब्रीफ किया था कि कैसे करना है. That night I got the dream कि वहाँ पर we are going to invest, I mean we are going to interact with such and such entities. और उससे पहले मैंने entities से usually interact करने चालू किया था. बट दिस वॉज रिगार्डिंग दैट लोकेशन ना. तो यूजली हम वही करते हैं कि जो लोकेशन पे जा रहे हैं वी स्टार्ट गेटिंग प्रेमोनिशंस अबाउट दोज प्लेसेस. वो आते हैं, ड्रीम्स आते हैं. सो एंड व्हाट वी डू इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टॉप द कम्युनिकेशन, बिकॉज अगर हमने ड्रीम में ही सब कुछ सेटल कर दिया तो वहां पर गैजेट लेके क्या करेंगे. है कि नहीं. सो दैट्स द रीजन देयर आई स्टॉप्ड इट. बट दैट वाज अ स्कैरी थिंग दैट हैपेंड देयर, बिकॉज व्हेन जब कम्युनिकेशन स्टॉप हुआ था उसका रेपरकशंस केम आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन. दोनों के घर पे सीन हुआ था. तुमको ऐसा कुछ मुझे ज़्यादातर मेडिटेटिव स्टेट में आए हैं या फिर रैंडम नोन लाइक व्हेन आई एम अवेक एंड अवेयर तब आए हैं प्रेमोनिशंस. मेरा ड्रीम मेजॉरिटी हैज़ बीन द अदर साइड कम्युनिकेटिंग विथ मी, या फिर मेरे जो खुद के पास्ट लाइफ मेमोरीज ये वो. बट अ प्रेमोनिशन इन ड्रीम स्टेट नहीं आया, वो मुझे वेकिंग स्टेज पे ज़्यादा आया. फ्लैशेस, विजुअल्स. If you have any scary dreams, please do comment down below. And अच्छे से लिखना. Why I'm telling? Because if it is a good one, we might read it out in a special video. So पूरा time लगा के लिखना अच्छे से if you have. So yeah, it has to be interesting and let's see. अगर आपके अच्छे हैं तो we will read it out, है ना. Now coming back to my dreams, जब तक जैसे मैंने कहा कि जब तक मेरे frequency कम नहीं हुए थे, I used to dream a lot. बहुत ड्रीम्स करता था मैं. एक आया अभी मुझे सडनली, इट्स स्मॉल वन, आई विल शेयर. आई थिंक 1-2 तो मैं शेयर करूँगा अभी. एक जो मुझे बहुत क्विकली आया आई वॉज इन 11th और 12th स्टैंडर्ड ऐसा कुछ. एंड कैसा था ना कि मम्मी पापा मैं बहन सब एक ही रूम में सोते थे. तो एक पॉइंट में क्या हुआ कि दिस इज आफ्टर आई गॉट इन टू दिस फील्ड. सो 11th-12th में तो आई वॉज ऑलरेडी इन दिस फील्ड. तो मम्मी पापा नीचे ऐसे लेटे हैं एंड दोपहर का टाइम और समथिंग लाइक दैट, या फिर जस्ट रात हुआ है. एंड बहन और मैं ऊपर बेड पे हैं एंड वी आर फेसिंग सम डायरेक्शन विच इज़ नॉट द स्लीपिंग डायरेक्शन. आई थिंक इट वाज नॉट और सम वियर्ड डायरेक्शन जो कुछ भी है. तो जस्ट आंख लगी है एंड ऐसे नहीं कि मैं स्लीप पैरालिसिस देख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ. बट व्हाट आई एम सीइंग इज कि मैं ऐसा अकेले खड़ा हूँ एंड लाइक आई एम बीइंग सराउंडेड बाय लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक. एकदम पूरा ऐसा पूरा ब्लैक मास स्मोक ऐसा सराउंड कर रहे हैं एंड आई एम वेरी स्कैर्ड.
एंड लाइक यू नो मैं बहुत डरा हुआ कि क्या हो रहा है. आई एम गेटिंग सराउंडेड लाइक पैर से जमीन नहीं दिख रही, आई एम सीइंग ब्लैक स्मोक, ऊपर नहीं दिख रहा है कुछ, ब्लैक स्मोक ऐसे दिख रहा है. एंड लाइक मैं उसका अंदर हूँ एंड लाइक आई एम गेटिंग कॉर्नर टू वन प्लेस, ड्रीम में मेरे को दिख रहा है. उसी बीच क्या होता है कि हमारे घर में यू हैव सीन, बोथ हैव सीन, दुर्गा माँ जी को पूजा किया जाता है. एंड वी ऑल ऑफ अस ऑफ आवर फैमिली लाइक वी हैव लॉट ऑफ फेथ इन हर, क्योंकि दैट्स हाउ शी हैज़ बीन विद अस सिंस 2000 और समथिंग, सो 24-25 years नाउ वो हैं. एंड वो भी मतलब मम्मी को बैठा तो मम्मी के तो और भी कितने सारे ड्रीम्स हैं दैट शी सीज एंड हैपेंस, यू नो. सो व्हाट आई सी इज कि ऐसा जो है ना, आई हियर अ वेरी क्लियर वॉइस इन माय निकनेम व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू शेयर राइट नाउ. इन माय निकनेम, आपको पता है ना? Yes. पता था. सो मेरा निकनेम में आता है दिस निकनेम एंड इट्स अ फीमेल वॉइस दैट आई हैव नेवर हर्ड, बट इट्स अ वेरी ऑथोरिटेटिव फीमेल वॉइस, लाइक ए टीचर वॉइस एकदम. टीचर जैसे मतलब करेक्ट कर रहे हो या फिर लाइन में ला रहे हो तो कैसे बोलता है. आई जस्ट हियर माई निकनेम एंड शी इज लाइक क्या हो रहा है ऐसा करके, लाइक शी इज लाइक व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ ऐसा करके. एंड वो जो पूरा ऐसा कवर हो गया था ना ब्लैक मास्क, it just opens and I just see ऐसा white light, exactly ऐसा white light है ना, ऐसे white light निकलता है and then I get up. बट मेरी बॉडी पूरी कांप रही थी वो पूरा टाइम, बिकॉज इतना डर गया था मैं इन द ड्रीम कि इट फ्रिक्ड मी आउट वेरी बैडली. मेरा ये मानना है कि इट वाज हर who just Right, helped me right. out के you know Right. come out क्या चल रहा है ऐसा करके, Right, हाँ. you know. And why this was connected to something paranormal, because it was right after some investigation or some cleansing that I did. अच्छा. उसके बाद ही था, मतलब वो बीच में ऐसा बहुत लगातार बहुत क्लिनजिंग्स आए थे एंड इट वाज ड्यूरिंग दैट पीरियड. अनदर ड्रीम तो अगेन यू गाइज, अगर आपने वो इन्वेस्टिगेशन नहीं देखा है जाके देख लेना, इतने अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है क्योंकि तब हमारे पास इतने सारे अच्छे अच्छे माइक्स वगैरह नहीं थे. बट दिस ड्रीम वॉज रिलेटेड टू माई मामाज प्लेस, दैट नेटिव दैट प्लेस. ना मैं बड़ा हुआ हूँ वहाँ पे एंड मैंने खेला कूदा है, वहाँ के कच्चे कैरी सब कुछ आम वगैरह सब हमने खाया है. जैसे ही रात होती थी वहाँ पे कोई नहीं जाता है, मतलब दैट एरिया कोई नहीं एक्सप्लोर करता है, बिकॉज हम रात में गए थे. यू सॉ हाउ इट इज़, दूर दूर तक कुछ लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, इट्स ओनली फॉरेस्ट एंड बहुत क्रिपी हो जाता है. अभी तो लोग फिर भी थोड़े से ओपन हो गए हैं, बाइक्स वगैरह चालू हो गए हैं तो आपको लगता है कि हाँ बाइक आ रहा है करके. बट दिस आई एम टॉकिंग लाइक व्हाट 2005, 2006, 2007 जब बाइक्स नहीं होते थे, लोग साइकिल पे जाते थे. एंड बिकॉज साइकिल पे जाते थे तो 6 बजे के बाद तो कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे. तो अगर आपको लाइट दिख रही है वहाँ पे, ये मानना था जो कि हमने के पॉडकास्ट में बोला था कि डहानी चल रहा है, दैट विच डायन वो शी इज़ ईटिंग, शी इज़ फीडिंग, जो कुछ भी है. तो इट्स लाइक अगर हम लोग को सुसु भी करना था ना, इट्स वेरी फनी थी, हम बच्चे थे तब, तो वरांडा था एंड उतर के जाओगे मतलब अंधेरा. सो द ओनली लाइट यू गेट, एंड पहले वैसे लाइट थे जो भैया के बाजू में जो लाइट है, नो फ्लोरेसेंट लाइट्स एंड ऑल, दीज आर द ओनली बल्ब्स वी हैड. एंड तो वो लाइट कैसा होता था कि वो जो छज्जा था, दैट स्ट्रॉज लगे हैं, तो वो स्ट्रॉ जहाँ तक है वहाँ तक लाइट है, उसके बाद उसका शैडो एंड पूरा डार्कनेस. तो अभी सुसु करने के लिए आगे जाएंगे क्योंकि घर के अंदर होते नहीं थे वॉशरूम्स. सो सुसु कैसे करेंगे, सारे कजिन ऐसे लाइन में खड़े होंगे लौंडे लोग एंड वरांडा में खड़े होके विल एम के उस तरफ हम लोग सुसु कर पाए क्योंकि अभी जाएगा कौन, सबकी फटी पड़ी है वहाँ We've done this in Goa also as well. Yeah, जहाँ तक उसका वो ये आता है ना, हाँ स्ट्रॉ का ये खत्म होता है, उसके बाद अंधेरा. हाँ, तो हमको वहाँ पर जाके फिर ब्रेव इट तो कि वो कौन से तो हमने सब पेड़ के किया पास खड़े रह के. हाँ. एंड वो हम सब करते थे. सो नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, एंड दिन में इट्स ऑल फाइन, दिन में लाइक यू नो ऐसे स्ट्रॉज रखे हुए हैं, बड़े बड़े आम के पेड़, एंड माय नाना हैड सम, you know, he still has some 20 आम के पेड्स एवरीवेयर, सो बड़े बड़े आम. एंड हम लोग वहाँ पे जाके खेलते थे. नाउ रात को आई रिमेंबर स्लीपिंग विथ नाना एंड एक बेड मेरे लिए रखा जाता था जहाँ वेर आई कैन स्लीप नानी के पास में, बिकॉज नानी यूज टू केयर अलॉट. तो नानी के पास यूज टू स्लीप. लेकिन इतने बुरे ड्रीम्स, और ड्रीम्स कैसे होते थे कि सेम प्लेस जहाँ पे हम लोग खेलते थे, इट्स लाइक समवन इज पिकिंग मी अप, सम लेडी वेयरिंग समथिंग रेड, but she's not wearing a red sari or anything, some red thing on her body. Now that I'm thinking, contemplating, I'm seeing कि she had some horn kind of thing ऐसा, but not proper cartoonish way. It was like ऐसा bulging, जो कि as a horn दिख रहा था. She used to hold me and she used to throw me, and मैं छोटा था.
एंड आई कुड सी इन द ड्रीम के मैं पूरा ऊपर जा रहा हूँ एंड आई एम अबाउट टू फॉल एंड मैं गिरता कहाँ था, ऑन द स्ट्रॉज जो कि रखे गए होते थे वहाँ पे। लाइक अभी जो टाइम आता है ना फसल मशीन में डालो तो चावल गेहूं और प्लांट अलग अलग हो जाते हैं, बाकी का जो हम रख देते हैं स्टोर करके, या तो मैं उसके ऊपर लैंड करता था एंड मैं भाग के वापस आ जाता था। दिस यूज्ड टू बी अ वेरी रिकरिंग ड्रीम। धीरे धीरे आई सॉ के वो लेडी के साथ देयर इज ऑल्सो अनदर मैन जो कि वहीं पे है। फिर धीरे धीरे बड़े हुए हम लोग, फिर मामा के यहाँ पे जाने का भी फ्रीक्वेंसी कम हो गया क्योंकि स्कूल वूल एग्जाम्स पहले हर छुट्टियों में चले जाते थे, फिर नहीं जाना हुआ। लेकिन ये ड्रीम कि समवन इज थ्रोइंग मी केप्ट ऑन हैपनिंग टिल आई वाज 12 years old और समथिंग लाइक दैट। 12-11 साल तक आई वाज गेटिंग द सेम ड्रीम। फिर धीरे धीरे नाउ दीज अभी जो ड्रीम्स आएंगे मैं अभी बताऊंगा, दे आर लाइक एज रिसेंट एज लाइक लास्ट 5-6 साल के अंदर हुए हैं, क्योंकि ये तो हमने 3 साल पहले जाके फिगर आउट किया। सो व्हाट आई यूज्ड टू से इज एंड वेरी सिमिलर टू योर्स के आई वुड सी अ लॉट ऑफ बैड ड्रीम्स एंड अगर मैं देखने की कोशिश करूँ कि कहाँ पे हो रहा है, इट यूज्ड टू बी मामा का घर। सो कभी जैसे एक ड्रीम फॉर एग्जाम्पल के सपोज आई एम वॉकिंग एंड आई सी के दिस क्रीपी क्रॉलीज आर कमिंग इन ब्लैक, नॉट जस्ट स्पाइडर्स और स्नेक, नहीं, दे जस्ट ब्लैक लुकिंग थिंग एंड जस्ट कमिंग, ऐसा मेरे तरफ आ रहे हैं एंड मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ जाऊँ, एंड देन मैं मुड़ के देखूंगा तो मामा का घर है एंड द ड्रीम वुड एंड, यू नो। फिर धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड काइंड ऑफ ल्यूसिड ड्रीमिंग, जहाँ पे मैं कंट्रोल कर पाऊँ कि डर लग रहा है तो मैं नींद तोड़ूंगा फटाक से, कि कोई उस तरफ आ रहा है फेंक रहा है तो मैं डॉज करूंगा, जो कि नॉर्मली ड्रीम में आपका नहीं होता है, आपको लगता है। व्हेन आई स्टार्टेड डॉजिंग दोज थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ड्रीम्स आने लग गए जहाँ पे अगेन सेम ऐसा एक कर्वेचर होगा ऑफ द रोड, मैं ऐसा बाइक पे हूँ एंड या फिर स्कूटी पे हूँ, मैं ऐसे चला रहा हूँ, करते करते मैं स्किड करके गिर जाता हूँ एंड जोरों की लगती है मेरे को, मेरा स्कूटी चले जाता है पानी के अंदर एंड आई एम सीइंग आई एम ब्लीडिंग एंड आई एम नॉट एबल टू गेट अप, आई एम लाइक समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड टू माय बॉडी, यू नो। एंड देन आई बी लाइक कि वेट, ये ड्रीम है, बिकॉज मैं तो सोया था थोड़ी देर पहले एंड देन आई ट्राई टू फाइंड द हाउस एंड आई जस्ट सी ये तो घर है। सो इट और एवरी ड्रीम यूज्ड टू, एवरी बैड ड्रीम यूज्ड टू एंड वहीं पे। सारे बैड ड्रीम्स, नथिंग गुड आई एवर सॉ इन दैट हाउस। वन डे आई जस्ट गॉट अप एंड आई रिमेंबर द लाइटिंग ऑल्सो, इट जस्ट दिस ब्लू लाइट जो है ना वैसा, बट इसका थोड़ा सा फीका टर्कोइश था, थोड़ा सा मोर ऑफ अ लाइटर साइड, ऐसा पूरा ब्लू है एंड एवरीथिंग। एंड मैं देख रहा हूँ एंड दिस आई थिंक इज फ्रॉम द मेमोरी, वाई, बिकॉज बड़ी मामी यूज टू वेक अप अराउंड 4:35, तो वो चालू हुआ तो मैं उठ गया, बच्चा था, एंड वो क्या करते थे, गोबर का पानी करके वो लेपा जाता था, क्योंकि मिट्टी का घर था ना तो स्ट्रॉन्ग करता है प्लस क्लींस करता है, सब मानते थे। एंड मेरे को गंदा लगता था, तो बच्चा था ना तो पैर पे चिपक जाता था, तो आई यूज टू ऐसे वॉक इन टोज, बट द लाइटिंग यूज टू बी लाइक दैट, लाइट ब्लू। वैसे ही टाइमिंग में मैं उठा हूँ, आई एम सीइंग एवरीथिंग, लाइक आप लोगों ने देखा नहीं है बट वो जो घर जब था ना, दैट बिल्डिंग, इट वाज मैसिव, बड़े बड़े ऐसे वैरेंडाज, उसके ऊपर बेड पड़े हुए हैं 2-3 जहाँ पे नाना लेटते थे, हम लोग बैठते कज़न खेलते थे, एटलीस्ट 6-7 रूम्स, उसके बीच में एक यू नो एक अदर वैरेंडा जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता था, दे यूज्ड टू सुखाओ थिंग्स, डू व्हाटएवर, सब देख रहा हूँ मैं। एंड मैं बाहर जाके देखता हूँ तो आई सी द लॉट ऑफ वियर्ड एनिमल्स अराउंड। मेरे को लग रहा है टाइगर्स है, बट वो टाइगर्स नहीं है, मतलब फर्स्ट इंस्टिंक्ट विल सी अच्छा टाइगर है बिकॉज कहानियाँ हैं, बट वो टाइगर्स नहीं है, बट दे आर वॉकिंग ऑन देयर ऑल फोर्स एंड ऑल, दे हैव टेल्स एंड ऑल, बट दे आर नॉट एनिमल्स आई हैव सीन कभी भी, बट एनिमल्स हैं जो कुछ भी हैं एंड दे आर लाइक ईटिंग, लाइक दे हैव एंटर्ड द गाँव एंड आई एम शाउटिंग कि अरे अंदर घुस गए, अंदर घुस गए, अंदर घुस गए, एंड मैं भाग रहे हैं, सब कोई भाग रहे हैं, एंड मैं से भागते हुए देखता हूँ कि एक ना मेरी तरफ आ रहा है, सो आई टेक अ टर्न एंड आई रश टुवर्ड्स दैट कुआं वाला एरिया। आप लोग गए थे क्या कुआं वाला की तरफ? कुआं वाले शायद, हाँ पीछे, तो वो कुएं की तरफ भागता हूँ मैं एंड उधर जाके मैं देखता हूँ कि उधर भी ऑलरेडी दे आर ईटिंग पीपल वहाँ पे, एंड देन अगेन आई टेक अ ब्रेक, आई एम लाइक वेट, दिस इज अ ड्रीम, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना बाय द टाइम जब मेडिटेशन घुसा इतना फेथ आ गया था खुद के प्रोटेक्शन पे एंड शील्डिंग पे, आई एम लाइक वेट आई एम शील्डेड, ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता। देन हम लाइक अच्छा ड्रीम है तो घर कहाँ है, एंड देन पीछे घूम के देखो तो घर है वहाँ पे करके, ऐसे चीजें हो रही थी एंड दैट थ्रोइंग वाला थिंग केप्ट ऑन हैपनिंग, वो तो बहुत साल तक होते ही गया एंड सारे ड्रीम्स उधर आ रहे थे। दैट इज व्हेन आई वाज लाइक शिट, वी नीड टू इन्वेस्टिगेट व्हाई, बिकॉज वहाँ पे दो या तीन ऑलमोस्ट 3 नाउ अनटाइमली डेथ्स हुए हैं। अभी तो एक रिसेंट जो मामा का माय मामा पास्ट है, वन ऑफ माय मामाज, उनकी बचपन वहीं से ही हुई
my nani had an untimely death suddenly, मतलब not untimely but हमारे लिए untimely था because suddenly cancer हुआ, मतलब पता चला कि कैंसर हुआ है. Then बड़े मामा, all untimely accident में he passed away. A lot of people have died there. Secondly, my sister is a sensitive and every time, अभी तो कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने देखा टूटा फूटा है, अभी भी वो जाएगी, वो वापस आएगी, उसको बुखार होगा. नॉर्मल बुखार नहीं, जोरदार बुखार होता है उसको, जोरदार बुखार होता है. मम्मी जाएगी, उनको बुखार होगा. सम एनर्जी इन दैट प्लेस दैट वाज वहाँ पे, जो कि बहुत ही वियर्ड थी. एंड नो वन हैड अ यू नो एट वन पॉइंट एवरीवन वाज लाइक कि प्लीज निकलते हैं यहाँ से, ये जगह हमको दबा रहा है. सो दैट्स व्हेन दे शिफ्टेड टू दिस न्यू हाउस जहाँ पे वी हैड लंच डिनर जो कुछ भी है. बट या देन वी वेंट एंड वी इन्वेस्टिगेटेड. आप लोग देख लेना बट मैं बता देता हूँ. एंड इट वाज क्वाइट, it was a revelation for me to see के क्या आया आप लोगों को during the investigation, that you know this demon that's attached to the ancestry and all, and it felt so filmy also that time, but also made so much sense कि हाँ, because out of everyone in my family I am the only one जो ये काम करता है, जो कि actually face to face उनके साथ सामने रह के काम करता है. बाकी तो डॉज करते हैं, नहीं तो सोल्यूशन निकालते हैं. हम लोग बोलते हैं सामने आके दिखा, हम देखेंगे क्या है. So it was kind of like a challenge and a threat for the entity के this he should also be removed. And so many of these people were suffering वो घर के वजह से, health issues and all अभी भी होते हैं. A lot of them जो कि आजू बाजू में रहते हैं, उनको अभी भी होता है. They have no idea why it's happening. But बहुत टाइम बाद जब हम लोग से मामा के यहाँ पे गए थे and we just discussing after investigation के क्या हुआ क्या नहीं, lot of them said कि नाना had lot of lands back then. एंड जब एंड गाँव में ये सब ऑकल्ट डार्क ऑकल्ट एंड ब्लैक मैजिक एंड ऑल आर वेरी कॉमन. एंड देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर नॉट लाइकिंग नाना बिकॉज ऑफ हिज प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग, बट ही वाज अ वेरी काइंड पर्सन ऑल्सो. सो समथिंग was done you know on that land that attracted a lot of these things. But thankfully जब जैसे ही हमने वो मेटेलिक कॉइन हमने खोद के डाला एंड मैंने कॉर्ड कटिंग किया वहाँ पे ऑन द स्पॉट, एंड मैंने सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पे दफन किया. आई एज ऑफ नाउ टुडे आई माइट हैव, बिकॉज हम बातचीत कर रहे हैं, नेवर नो, बट दोज स्कैरी ड्रीम्स ऑफ दैट प्लेस दे हैव स्टॉप्ड आफ्टर दैट वन थिंग दैट वी डिड. Nice. Demello House of Odisha. Yeah, मतलब but lot of bad dreams I've had बचपन में, because the houses were haunted, no? तो मैं बहुत चीजें देखा है मैंने बड़े होते. That's why the डर जो बैठा था मेरे अंदर, इसीलिए. But I think there is some crystal people can I think keep. Yes. They amethyst बहुत help करता है for nightmares. हाँ. Yeah. बहुत हेल्प करता है. एक क्रिस्टल है, इसका नाम है सावियो. उसको भी पास में रखो. But you cannot buy, unfortunately. This you can buy. No, at dimensions.com में सावियो पोटैटो नहीं मिलेगा. एक फोटो रखा होगा. But yeah, amethyst helps. Yeah, amethyst is there. Secondly, if you want protection, I think black obsidian and black tourmaline are great for protection. We have bracelets in K, and there will be a link. हाँ, मतलब जो भी बेसिकली ड्रीम्स का बोलते हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वी डेफिनेटली रिकमेंड 2 of them. आप ब्लैक टोरमलिन या ब्लैक ऑब्सिडियन यूज कर लो, 1 of them, एंड एमेथिस्ट. ये कॉम्बिनेशन इज ग्रेट टू काम द ड्रीम्स डाउन. But these are to calm the symptoms of the dreams, and the main cause of the dreams, if it is paranormal or whatever coming from your DNA or past life, वो पहले root से solve करना होगा. Yes, keeping that in mind. But that's it, I think. यही थे हमारे scary dreams. आगे boring लगे तो that's how we are. You know, अभी क्योंकि boring लग रहे हैं, क्योंकि now we are seeing it from a view जिधर हमको भी like क्या देख रहे थे हम लोग. But that's how it is. अगर आपको अच्छा लगा, let us know. If you want more of our personal things, let us know. कभी हम डालेंगे, but I think next podcast से we will be back to dissecting cases, because there are a lot of cases that need our attention. And people need to be made aware of those dissections and those cases. तो वो हम करेंगे. Again, don't forget कि अगर आपके पास एक अच्छा खासा, मतलब आपके लिए बुरा होगा I'm sure, but पढ़ने के लिए अगर कोई अच्छा वाला नाइटमेयर है स्टोरी, तो प्लीज़
comment down below, and if it is good, we will read it out in a special segment, in a special video. Having said that, ये कब आ रहा है? 200 के हो चुके होंगे क्या? पता नहीं, पता नहीं हुए तो कर दो यार, एंड अगर हो गया है तो थैंक यू सो मच. It's been hell of a ride as of now, and बहुत आगे जाना है, but I hope you like this video. अगर आप इसको Spotify पे सुन रहे हो, don't forget to rate us, it will be great. And tell us if you want to know more about us, as in our favorite color, favorite dish, our favorite dress, our favorite location. And जब भी हम आपकी सिटी में जाएंगे, get those foods and maybe तीनों भैया फूडी हमने बैठे आपके हैं लिए यहाँ ये लाया पे, है. 3 फूडी बैठे हैं यहाँ पे. But thank you for watching. Please do subscribe and have a great day or great night whenever you're watching. Bye bye. Bye.